सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। So with this note, let's begin. Good evening, IIEBM. My name is Balkrishna and we are back again with another session. I welcome you all to IIEBM's induction program of 21st batch Ignite 2020. It gives me immense pleasure and honor to introduce you to our today's guest speaker, a celebrity, a role model, young and dynamic, Mr. Himanshu Ashok Malhotra. Mr. Malhotra is an actor, producer, and the founder of social initiative Share and Grow. He is a familiar face on Indian television as he appeared in numerous TV shows and films since last 14 years. Currently shooting with Dharma Production for a film titled Sher Shah with Siddharth Malhotra and Kiara Advani. He is the winner of the show named Nach Baliye Season 7 in year 2015. And he has also participated in Indian Daredevil show Khatron Ke Khiladi Season 7. He was also an associate producer of Indian international film titled In the Shadows, starring Manoj Vajpayee, Neeraj Kabi, Shahana Goswami, and Ranbir Shori, which is released in year 2018. With a strong body of work and his extensive experiences with individuals in TV, films, and reality shows, he has gained deep insight about human behavior and patterns. Through Share and Grow initiative, he shares his well-rounded life experiences with individuals, help them find their unique potential, and lead them to highest achievement in their life. So, ladies and gentlemen, let's welcome young and dynamic Mr. Himanshu Ashok Malhotra. Hi, Balakrishna. How are you doing? Thank you so much for such wonderful introduction. Truly indebted to you for this. Thank you so much, sir. So we will have an interactive session. I have, a couple of questions for you, and meanwhile, definitely students are also there, and That's they will wonderful. ask questions. Oh yeah, yes. Please go on. Yeah, I would love to answer their questions as well. Great. So my first question is interesting one, and probably you will love answering this question. We have seen you doing wonders on silver screen. Then how come this transition happened? How come Share and Grow, from where this yeah. क्या होता है ना बालकृष्ण, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लम्हे हो जाते हैं जब जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी एक नई दिशा ले लेती है, एक नई डायरेक्शन ले लेती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था। ये आई थिंक 2016 की बात है और मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, बट आई थिंक समवेयर अराउंड जुलाई या अगस्त की बात है 2016। मैं एक शो करने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था और वो शो था जिसमें मैं एक ऐसा किरदार निभा रहा था जिसमें मेरा कैरेक्टर था 17 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र तक का, सो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल वेरिएशन इन वर्सेटिलिटी एन आर्टिस्ट ऑलवेज क्रेव्स फॉर। सो इट वाज समथिंग लाइक अ कैरेक्टर व्हिच वाज सरबजीत फिल्म आई थी ना एक, जिसमें रणदीप हुड्डा ने कैरेक्टर प्ले किया था। तो इट वाज अ होल जर्नी एंड द कैरेक्टर वाज आल्सो इंडियन स्पाई इन अ पाकिस्तान आर्मी। तो बड़ा ही कमाल का किरदार था। इट वाज अ ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरो। 2 आवर्स का एक शो बनने वाला था, 2 घंटे की, मतलब बहुत ही अच्छे से दे हैड शॉट एवरीथिंग। इट वाज सपोज्ड टू कम ऑन जी टेलीफिल्म, जी टीवी, एंड देन मेरे प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, सबने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग चंडीगढ़ गए, नाभा गए, अमृतसर गए, जेलों में शूट किया, बहुत सारी चीजें की हम लोगों ने। और बहुत सुबह 4-4 बजे उठ के प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना, मार्शल आर्ट्स, एक्शन, बहुत सारी चीजें थी। तो जब वहां से मैं आया शूट वूट करने के बाद, 15-18 दिन के बाद की बात है, तो घर पे आया, ये 20-25 दिन शूटिंग के बाद की बात है, मेरे घर पे फोन आया मेरे प्रोड्यूसर्स का। एंड उनका फोन आया कि हिमांशु, हम लोगों ने जो शो किया है वो शो तो चैनल को पसंद आ रहा है, लेकिन उनको डायरेक्टर और डीओपी का काम बहुत पसंद नहीं है। कुछ उनको कमियां लग रही हैं, कुछ खामियां लग रही हैं, तो शायद हो सकता है कि शो में बंद करना पड़ जाए। तो मैंने कहा इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया, और आप करोगे शो बंद करना पड़ जाए तो अच्छी बात नहीं है, देखो क्या कर सकते हैं। तो दे सेड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट आई थिंक हो सकता है 99% के हमें शो बंद करना पड़ जाए, बिकॉज वी कांट टेक द होल क्रू अगेन, गो टू द चंडीगढ़, गो टू नाभा, गो टू अमृतसर, गो टू जलंधर एंड शूट इट। इट्स गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव, सो वी कांट डू इट। तो ऐसे ठीक है यार, अब हम इस मामले में कुछ कर तो सकते नहीं। एज एन आर्टिस्ट यू आर आल्सो टाइट ना, आपके हाथ बंधे होते हैं। तो बस ये बैठा हुआ था, ऐसे बात हुई फोन पे, इतनी देर में मेरी वाइफ आई डोर से, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेबी वो शो था ना जो हम लोगों ने जी टीवी के लिए किया था, वो शायद अब बंद हो जाएगा। तो शी जस्ट नॉडेड हर हेड एंड शी जस्ट वेंट टू द बेडरूम।
बेडरूम में गई और मैं उसके पीछे गया तो ऐसे ही बात करने के लिए, तो देखा वो रो रही है, तो मैंने कहा क्या हो गया? तो शी सेड नहीं मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए कि तुमने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया और वो शो बंद हो रहा है तुम्हारे लिए, तो ये सही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, इतने सारे शोज़ किए हैं, इतनी सारा फ़िल्में की हैं, एक आध बंद हो गया तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा कर लेंगे। तो शी सेड नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो सिर्फ़ मैं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं 15-16 साल से तुम्हें जानती हूँ। देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू व्हिच इज़ स्टिल नॉट कम आउट। लेट इट फ्लो, उसको आने दो, तुम जाओ, तुम कुछ सेशंस-वेशंस करो, ऐसा उसने मुझे कहा था, मुझे याद है। तो Okay. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, सेशंस-वेशन मतलब कौन सुनने के लिए आएगा, क्या बोलूँगा, क्या देखेंगे मतलब तो शी सेड नहीं तुम करो, तुम्हें करना चाहिए, देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू व्हिच हैज़ द पावर टू टच पीपल्स लाइव्स। तो आई सेड ठीक है, तो मुझे याद है रात को 10 साढ़े 10 बजे की बात है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया दिल्ली में। मैंने कहा कि भाई ऐसे सेशन करने हैं, क्या करना है पता नहीं, कैसे करना है पता नहीं, लेकिन कुछ करेंगे। तो मुझे याद है उसका फ़ोन आया था, भाई रात बहुत हो गई है, सो जा, सुबह बात करेंगे। तो ऐसे नहीं करना है भाई, कैसे भी करना है मुझे पता नहीं। सो बा वहाँ पे बात खत्म हो गई, फिर मैंने सोचा अगले दिन कि उसने कहा दिल्ली आ जाइयो नेक्स्ट वीक, तो हम कुछ सेशन स्कूल्स, कॉलेजेस में रखवा देंगे बिकॉज़ ही नोज़ अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर एंड ऑफ Mhm. कोर्स यू आर अ सेलिब्रिटी, तो पीपल विल आल्सो वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। Right. सो आई सेड ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम है, तो क्या करेंगे, क्या सेशंस होंगे, कैसे करेंगे? तब आई थिंक उस रात को सोचते-सोचते मैंने सोचा हम मैं सिर्फ़ इतना सिंपल करूँगा जो मेरी ज़िंदगी के लाइफ़ एक्सपीरियंसेस हैं ना, जो भी एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, समझे हैं, चाहे सक्सेस है, चाहे फेलियर है, उसको लोगों से शेयर करते हैं। बस लेट्स कीप इट एब्सोल्यूटली सिंपल। कोई लेक्चरबाज़ी नहीं, कोई समझाना नहीं किसी भी चीज़ को, बस जो सीखा है, जो समझा है, जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वो सबसे शेयर करते हैं। इसलिए इसका नाम शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव रखा गया एंड दैट्स वेयर द टैगलाइन केम, वी शेयर एंड वी ग्रो। और तब से लेकर 3 साल हमने इसको फॉर्म भी किया था 5th सितंबर 2016 on the Teachers' Day, Teachers and Day. the first video and first official poster was launched on 14th November 2016, Children's Day, Children's Day. because it is learning and unlearning in a beautiful manner. And since then, we have been, going to various schools, colleges, institutes, corporates, companies, everywhere. I think Mrs. India, traveling across India, traveling across the globe. So fortunately blessed that so many people have been inviting us and we've been going and we've been trying to touch their lives, help them heal, help them inspire, help them transform. So जो खुद से कर सकते हैं वो करते हैं ताकि at least let's make a difference in this universe and this existence. Great. So I must say that ma'am is behind this inspiration. Yes, absolutely. और मैम takes full credit of it, हाँ? किसी भी Instagram लाइव पे अगर मैम आ जाए तो सबसे पहले कहती है ये शेयर एंड ग्रो का आइडिया मेरा था। Great, great. So, with this note of happiness, I would like to ask you a question: How to live happily? What is the secret? बड़ा सिंपल है, जितना ज़्यादा लाइफ को सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ज़्यादा खुशी आस-पास हो जाती है। होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा अपनी खुशी के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं, अपने रिश्तों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और कहीं न कहीं जब हैप्पीनेस की डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर हो जाती है, तो हम फँसते चले जाते हैं। खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, लेकिन हमने ना आस-पास अपने ही चक्रव्यूह बना लिए हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बना ली हैं। मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप लाइफ को सिंप्लीफाई करते हो, उतना ज़्यादा आप ठहर जाते हो ज़िंदगी के साथ, उतना ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हो, उतना ज़्यादा आप एन्जॉय करते हो लाइफ को, उतना ज़्यादा यू हैव द कैपेसिटी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ ब्यूटीफुली एंड सक्सेसफुली। तो मैं ये हमेशा कोशिश रहती है, मैं सबको ये कहता हूँ कि सिंप्लीफाई करो यार चीज़ों को ना, बहुत ज़्यादा अ, दिमाग में बना मत लो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग की उपज होती हैं, ज़िंदगी में उनकी कोई एक्जिस्टेंस नहीं होती, हकीकत Right, नहीं है वो ज़िंदगी की। right. हमने पास्ट के बहुत सारे बैगेजेस ले रखे हैं अपने दिमाग के अंदर, पास्ट हो चुका है, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, वो इंसान जा चुका है, वो करियर जा चुका है, वो जॉब जा चुकी है, वो बिज़नेस जा चुका है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन हम अभी भी वहीं अटके पड़े हैं, तो वहाँ उस अटकन से बाहर आना बड़ा ज़रूरी है। उन सब चीज़ों को छोड़ते चले जाना है, ज़िंदगी में जो भी आ रहा है उसको ग्रहण करते चले जाना है और उसको अच्छा बनाना है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है बालकृष्ण कि वेलकम फ्यूचर विद पेशेंस एंड करेज, कि हमें भविष्य का निर्माण नहीं करना है, हमें भविष्य को देखना नहीं है क्योंकि ना भविष्य का निर्माण कर सकता है कोई, ना उसे कोई देख सकता है। नीदर कैन वी फोरसी फ्यूचर नॉर वी कैन क्रिएट फ्यूचर, ऑल वी कैन डू इज वेलकम फ्यूचर विद पेशेंस एंड करेज। तो भविष्य आ रहा है, वो रोज लम्हे की तरह आपके पास आ रहा है, उसको धैर्य और साहस के साथ फेस करना है और उसको अच्छा बनाना है। तो जो ये कला जान जाता ना, जो ये खिलाड़ी बन जाता ना कि जो भी आ रहा है, ताश में कोई भी पत्ते आ जाएँ बालकृष्ण, खेलना आना चाहिए और जीतना आना चाहिए। ये खिलाड़ी के ऊपर होता है, ये पत्तों से कुछ नहीं होता। तो ज़िंदगी में जो भी आ जाए आपके पास, आप उसे अच्छा कैसे बना सकते हो और उसमें खुश कैसे रह सकते हो, ये आपके हाथ में होता है।
क्योंकि चाय में जब पार्ले जी डुबो के खाते हो ना, उसमें भी खुशी होती है। एब्सोल्युटली। और रात को 1 बजे जब दोस्तों के साथ मैगी खाते हो, तब भी उसमें भी खुशी होती है। दोस्तों के साथ सिर्फ बैठ के टपरी की चाय पीते हो, उसमें भी खुशी होती है। तो खुशियाँ आस-पास ही हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ ताजमहल की कैपुचिनो से ही रिलेट कर लेते हैं कि जब ₹500 की ये कॉफ़ी पिएँगे तभी खुश होंगे, ऐसा नहीं होता। वो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर निर्भर मत करो। राइट, सो आस-पास की खुशियाँ ढूँढो, ज़िंदगी बड़ी प्यारी सी है, बड़ी ब्यूटीफुल सी है। राइट, राइट। सो आपने श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस दिया। आई विल कम टू दैट क्वेश्चन आल्सो। आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट एज वेल, बट एक इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सिंप्लीफाई कीजिए। व्हाट इफ यू हैव नेगेटिव सराउंडिंग्स? देखो, जब ऐसा कुछ होता है, मैं ये भी कहता हूँ, जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में फँस जाते हो, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आस-पास के लोग आपको कहीं न कहीं डोमिनेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नो एंट्री बैरियर लगाना। हमने ना नो एंट्री बैरियर्स नहीं लगाए हैं। हम फ़ोटोज़ तो फ़िल्टर करके डालते हैं, लेकिन ज़िंदगी को फ़िल्टर नहीं करते। वेल सेड। तो फ़िल्टर करना बड़ा ज़रूरी है कि किसको इजाज़त दी जाए ज़िंदगी में आने की, किसकी बात कितनी चुभनी चाहिए, किसकी बात कितनी लगनी चाहिए। अगर आपको पता है, देखो, एक एक चीज़ बड़ी प्यार से समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो इंसान हमसे प्यार करता है ना, उसको सिर्फ़ यही हक है कि वो हमें एम्पावर करे, एनकरेज करे या अपलिफ्ट करे। उसको हक नहीं है कि बार-बार हमें क्रिटिसाइज़ करे, बार-बार हमें डिस्करेज करे, क्योंकि डिस्करेजमेंट से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। अनफॉर्चुनेटली आस-पास का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव हो गया। हर कोई दूसरे को ट्रोल कर रहा है, टाँग खींच रहा है, क्रैब मेंटालिटी है। उससे क्या हो रहा है, लोग दबते चले जा रहे हैं। तो मैं सबसे ये गुज़ारिश भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ, जितने भी आपके लव्ड वन्स हैं उनको भी कहिए, लेकिन जैसे हमारे घर में रूल है कि कोई किसी की कमी निकालेगा तो ₹1000 फाइन देना पड़ेगा। ओके। तो हमें कमियाँ निकालने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हर इंसान में कमियाँ, हर इंसान में ख़ामियाँ हैं। लेकिन राइट, अगर आप कमियाँ देखते रहोगे तो कमियाँ ही दिखती रहेंगी, आप खूबियाँ देखोगे तो खूबियाँ नज़र आएँगी। अब व्हाइट बोर्ड पे आप ब्लैक डॉट को ही देखते रहोगे तो ब्लैक डॉट ही नज़र आएगा ना। राइट, इतना सब कुछ व्हाइट है, इतना सब कुछ है, कुदरत इतना सब कुछ दे रही है, ज़िंदगी इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतना सब कुछ है। आस-पास का एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक है, तो 2 रास्ते हैं। अगर उड़ी मार सकते हो तो उड़ी मार लो, इन द सेंस अगर आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। राइट, क्योंकि इससे डिसएसोसिएट तो आपको होना ही पड़ेगा ना। राइट। एक पानी है एक पानी है जो ठहर गया है, जो रुक गया है, तो वो गटर बन जाता है ना, गंदा हो जाता है। एक पानी है जो बहता चला जाता है नहर की तरह, तो वो राइट, पानी साफ रहता है ना, तो आपको बहते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है, आपको रुकना नहीं है। आप रुक जाते हो, जहाँ-जहाँ आप अपनी ग्रोथ रोक देते हो, वहाँ आप रुक जाते हो, ठहर जाते हो, थम जाते हो। जब आप ज़िंदगी से सीखना बंद कर देते हो, तो आप थम जाते हो, रुक जाते हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ज़िंदगी से सीखते चले जाओ, आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, उससे थोड़ा-सा अगर लग रहा है कि नेगेटिव है, तो डिसएसोसिएट करो। वो व्हाट्सऐप ग्रुप्स, वो बैकबाइटिंग, वो बिचिंग, वो गॉसिपिंग, ये ऐसा लगता है कि थ्रिलिंग है, लेकिन एक्चुअली थ्रिलिंग नहीं है। उस प्लेज़र के अंदर, उस सेंसेशन के अंदर ना पेन छुपी होती है। वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, क्योंकि आस-पास का नेगेटिव एनवायरनमेंट बैठ जाता है, और आप धीरे-धीरे खुद को भी, क्योंकि सामने वाला जब कहता है कि लिसन, यू कांट डू दिस, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू लूज़र है, तू स्टूपिड है, तू फूल है, तू डम्ब है, तू डेफ है, जो भी है। तो क्या होता है ना, धीरे-धीरे वो बात सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और आपको भी लगता है, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। व्हाट आई टेल पीपल इज़, अगर कोई, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है ना आपको डिस्करेज करने का। एब्सोल्युटली। आप, हर इंसान को अपने आप को करने का कुछ भी हक है, दूसरों को कहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोलो। इससे बेहतर है कि शांत रहो। ऊपर वाले ने ज़बान दी है कम बोलने के लिए, ज़्यादा सुनने के लिए। कम बोलो, लेकिन अच्छा बोलो। उसमें वज़न होता है। उन बातों को लोग सुनते हैं, उन शब्दों में बड़ी ताकत होती है। बालकृष्ण, आप अपने शब्दों से या तो किसी के दिल में उतर जाते हैं, या किसी के दिल से उतर जाते हैं। अब ये वेरी आपके वेल हाथ में सेड, है। वेरी वेल सेड। या आप किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते ये आपके हाथ हैं। में है सिर्फ। तो अपनी ज़बान को, अगर कोई और आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप गलत मत करो। अगर किसी ने गलत कर दिया, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। किसी ने गलत कर दिया है, आप नो एंट्री बैरियर लगाओ, उसको साइड में करो ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी के दारोमदार, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। मतलब अगर कोई मुझे कभी भी इंसल्ट कर दे, कोई मुझे कभी भी कुछ भी बोल दे और मैं हमेशा परेशान हो जाऊँ उनकी बातों को लेकर, तो मतलब मेरी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। दे आर ट्रीटिंग मी एज़ अ पपेट इन देयर हैंड्स एंड आई विल नेवर वांट दैट। व्हाई वुड एनीबॉडी वांट दैट?
सो अगर कोई, तो नो एंट्री बैरियर क्रिएट करो, बात वही लगनी चाहिए जिसमें समझदारी हो, बात वही आपको दिल तक लगनी चाहिए जिसमें ग्रोथ हो, बाकी सब बातें बेमायने हैं, छोड़ दो। Release yourself from the toxicity. Right. So when we are talking about this dissociation from these people, yes, but sometimes हमें भी वो उम्मीदें होती हैं. We also have those expectations from people. We also have ill feelings, good feelings. How to detach? बालाकृष्ण, अगर इस बात को हम समझ जाए, सिंपल सी बात को कि अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, और ये बात अपने जहन में अच्छे से उतार दिया, तो कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन हो जाता है, जैसे कहते हैं आत्म संतुलन। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं ना, स्टे सेंटर्ड, स्टे बैलेंस। द रूट कॉज ऑफ all pain, suffering and pain is attachment. Right. अच्छा देखो, अटैचमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सेंटर्ड हो, बैलेंस्ड हो, अगर आप सही संतुलन में है। अगर वो सही संतुलन में नहीं है तो परेशानी है। इन द सेंस होता क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि इस इंसान के बिना हम रह नहीं सकते और उसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, और हम वो मांगता 100% है, लेकिन हम 1000% देना शुरू कर देते हैं। हम बिल्कुल जमीन में नौछावर कर देते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। अगर इस बात को समझ जाएं यहाँ पर ध्यान से कि हर इंसान के बिना आप रह सकते हैं, ये तो सत्य है। लोग जिंदगियों से गुजर जाते हैं। मेरे डैड गुजर गए थे मेरे बर्थडे वाले दिन। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी सांसें रुक गई, ऐसा तो नहीं है कि उसके अगले दिन मैंने खाना नहीं खाया। तो ये मनगढ़ंत कहानियां आपके दिमाग की, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप रह नहीं सकते, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। लग रहा है का मतलब है आपका परसेप्शन है, आपका इल्यूजन है, आपकी एक रियलिटी नहीं है। हकीकत अलग होती है जिंदगी की। राइट। तो ये इस बात को समझना जरूरी है कि दिमाग को ना, बालाकृष्ण, कभी समझ में नहीं आता कि सच क्या है और इल्यूजन क्या है। दिमाग दोनों को सेम ट्रीट करता है, तभी तो आपके दिमाग में एक मेमोरी चिप है। आप पास्ट को सुन के या देख के या महसूस करके, क्योंकि पास्ट तो हो चुका है 3 साल पहले, 15 दिन पहले, 1 साल पहले, जो भी आपकी घटना है, आप उस पास्ट को ना सिर्फ एक टेप में रिकॉर्ड करके बार बार रिवाइंड प्लेबैक करते रहते हो अपने दिमाग में, मेमोरी के फॉर्म में, क्योंकि मेमोरी है और तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो घट चुका है। अगर फिजिकली एग्जिस्ट करता तो आप वहां पे जाके चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो साइकोलॉजिकली एग्जिस्ट करता है सिर्फ। तो इस बात को अगर समझ जाए कि पास्ट कुछ है नहीं, सिर्फ हमारी टेप अटक गई है, वहां पर अटक जाती है कभी कभी, जिससे ज्यादा लगाव होता है उसकी टेप अटक जाती है, वो दिमाग से जाता नहीं है, उसको वहीं का वहीं छोड़ देना और आगे बढ़ते जाना। ये बड़ा सिंपल है, उसको सिंप्लीफाई करना है चीजों को। जो चीज है ही नहीं, जो माया है, जो इल्यूजन है, आपके दिमाग की एक कहानी है, तो कहानियां बनाना बंद करें। अब कहानियां खत्म हो गई हैं, जिंदगी की हकीकत को सी लाइफ एज इट इज। Right, right. On a lighter note, I am just looking at the chat box, and some of the students are saying, "Can we have a pleasure to meet ma'am also?" Absolutely, yes. Why not? Ma'am is from Pune Okay. originally, so I probably once she comes, not today. आज तो नहीं हो Definitely, पाएगा, whenever you are but visiting the probably. campus. Probably because I keep visiting. I love the students, and we also did one of the session last year. So whenever I think Dr. Jay will permit and he will invite, would be wonderful to meet everyone personally. And I will also tell ma'am to join me. Great, great. So my next question is related to this. We were talking about the balance. So how to balance passion, profession, or you can say the career. So some people are passion driven, but they cannot balance their profession. So how to tackle it? देखिए, जुनून जो है ना, जुनून तो बेहद जरूरी है। जुनून में तो मजा है, जुनून में एंजॉयमेंट है, जुनून में सब चीजें हैं। कुछ लोग मैं कहता हूँ, या तो अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो, अगर बना सकते हो तो। अगर जिस चीज से बेहद लगाव है, जिस चीज से बेहद प्यार है, बेहद मोहब्बत है, अगर उसको करियर में कन्वर्ट कर सकते हो और अपना सर्वाइवल वहां से ले सकते हो तो कर लो। इससे बेहतर तो कुछ होगा नहीं। कि जैसे मुझे एक्टिंग से बेहद प्यार था तो मैंने एक्टिंग को प्रोफेशन बना लिया उसके लिए, लेकिन बेहद मेहनत की, बेहद वर्कशॉप्स किए, प्लेस किए, थिएटर किया, बहुत कुछ किया। आज भी करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ग्रो करना बड़ा जरूरी है, अपडेट करना बड़ा जरूरी है। वरना ये iOS को सो लोग स्टैग्नेंट हो जाता है, हटा देते हैं। नया वर्जन चाहिए हर इंसान को। सो अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया जाए, अगर बना सकते हो तो उसमें क्या आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। और क्या होता है आपका, क्योंकि आपका मन, आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका हुनर उसी के अंदर है, तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन कभी कभी जिंदगी में बालकृष्ण ऐसा होता है कि हम अपने प्रोफेशन को, मतलब या अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना पाते, मजबूरियों की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है,
तो जो भी प्रोफेशन आपको मिलता है, जो आपको किया जा रहा है या करने के लिए कहा जा रहा है, क्या हम उसके अंदर कुछ समय के लिए पैशन नहीं ढूंढ सकते? राइट। ये किसने कहा कि हम पैशन सिर्फ अपने ही मन के, तो या तो फिर आप जिंदगी को अपने मुताबिक चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आप चाहते हो बस जिंदगी वैसे ही हो, लेकिन जिंदगी हमारे मुताबिक चलती नहीं है। अगर जिंदगी हमारे मुताबिक चलती तो कोरोना कभी होता नहीं। राइट। तो जब आप कोरोना हुआ है, इट्स अ बिग बिग एग्जाम्पल, सबके लिए है कि देखो, जिंदगी को, कुदरत को, यूनिवर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम वी आर जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट, नेचर विल डू और हम लोग डिसअपियर हो जाएंगे, ये सच है। एब्सोल्युटली राइट। साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, तो ये समझना जरूरी है कि बस अटको मत। अटको मतलब कि हम बहुत ब्लिंकर्स लगा के ना अटक जाते हैं कभी कभी, कि यार यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। हमें लगता है कि हम फोकस्ड हो रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं है ये क्या है, आपने बाकी जिंदगी की सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया। हो सकता है एक काम जो आपको लग रहा है कि अभी आपका मन नहीं है, आपको नहीं पता ये काम कब जिंदगी में, इसका दिया हुआ कौन सा एक्सपीरियंस काम करने का जिंदगी में कहाँ काम आ जाएगा। स्टीव जॉब्स ने, बिफोर आईट्यून्स एंड एवरीथिंग हैड स्टार्टेड, उन सबसे 8-9 साल पहले कैलीग्राफी सीखी थी ऐसे एज अ हॉबी, और राइट। उनका मन था सीखने का। उनको थोड़ा ना पता था कि 10 साल बाद जब मैं कंप्यूटर्स बनाऊंगा तो कैलीग्राफी मेरे काम आ जाएगी। जिंदगी में राइट। हर चीज कुछ ना कुछ रीजन से होती है, कुछ ना कुछ कारण से होती है। तो अगर कहीं अटक गए हो, किसी प्रोफेशन में अटक गए हो, किसी जॉब में अटक गए हो, किसी पढ़ाई में अटक गए हो, तो समझो कि यार ये भी जरूरी है, यहाँ से कुछ सीखने को है, या ऊपर वाला चाह रहा है मैं कुछ सीख लूं। यहाँ से क्या ऐसा सीखा जा सकता है जो जिंदगी में आगे काम आएगा, क्योंकि हर चीज काम तो आएगी। मैं क्रिकेटर था 12 साल, लोग कहते हैं क्रिकेट क्यों खेला, क्रिकेट छोड़ा फिर एमबीए की, लोग कहते हैं फिर एमबीए क्यों की, एमबीए खत्म की उसके बाद एक्टर बन गया, तो लोग कह रहे हैं क्रिकेट, एमबीए, एक्टर, ये क्या तालमेल है। लेकिन बालकृष्ण, जिंदगी में हर चीज कनेक्टेड है। क्रिकेट ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना होता, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाउंसिंग बैक एबिलिटी, कि राइट। आज आपने 100 मारे हैं, जरूरी नहीं है कल भी 100 लगेंगे ना, हो सकता है कल जीरो हो जाए, फिर जीरो हो जाए, फिर जीरो हो जाए, लेकिन फिर आपको खुद को उठाना पड़ता है कि कुछ नहीं, 100 मारने वाला भी मैं ही हूँ और जीरो करने वाला भी मैं ही हूँ, दोबारा 100 मारते हैं। राइट। राइट। करेक्ट। और पढ़ाई में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, एक्टिंग से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो जिंदगी में हर चीज कनेक्टेड है, इसलिए एज एन एक्टर मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। ये वॉलेटाइल प्रोफेशन है, बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारा फेलियर है, कभी अवार्ड फंक्शन में ऊपर होते हो, कभी नीचे हो जाते हो, कभी कोई फोटो लेता है, कभी कोई फोटो नहीं लेता है, कभी कोई पूछता भी नहीं है, कभी 100 लोग आ जाते हैं। सो ये हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन क्या है, क्योंकि मैंने क्रिकेट से सीखा हुआ था कि निराश नहीं होना है जिंदगी में, बस अपना काम करते चलो, हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, and you will keep treading your path. So all those learnings which I learned in my childhood in cricket has helped me in becoming a better actor as well. Great. Great. So the next question is about determination, about Hmm. focus in life. Hmm. How to be determined? How to be so sure that this is something which I'm looking for? देखो, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प कैसे आता है? इच्छा शक्ति से आता है। इच्छा शक्ति मतलब विल पावर। बिना इच्छा शक्ति के तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी तो क्या करोगे जिंदगी में? तो इसलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में ना छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। एक्सपेरिमेंट जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है कि यार आज से शुगर नहीं खानी है। Okay. आज शायद 12वां या 13वां दिन है, मैंने शुगर का एक दाना नहीं लिया है। ये बस ऐसे दिमाग में आया तो मैंने कहा एक प्रयोग करते हैं, कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं खाया। अब क्या हो गया? अब मैंने नहीं खाया तो इससे क्या हुआ? बालकृष्ण सुनो, जब मैंने नहीं खाया तो मेरा जो आवारा मन है ना, वो कमजोर हो गया। आवारा मन, जो चंचल मन है ना, इधर उधर भटकता रहता है कि नहीं खा लो, मीठा देखते ही खा लो, क्योंकि पंजाबी बॉय लव्स मीठा। मीठा देखते ही खा लो, ये मिल रहा है खा लो, वो मिल रहा है खा लो। लेकिन आपने क्या किया, उस आवारा मन को, उस चंचल मन को कमजोर कर दिया। Right. तो जब ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते रहते, जैसे अचानक से मेरे मन में आता है कि आज सोशल मीडिया बंद कर देना पूरे दिन के लिए, तो मैं पूरा दिन सोशल मीडिया नहीं देखता। या अचानक से मन में आया कि 2 घंटे तक फोन स्विच ऑफ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का भी फोन आ जाए, फोन बंद रहेगा। बंद कर दिया। वॉक कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो आज ऊपर नहीं देखना, बस सामने देखना है। चाहे वो 15 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये क्या होता है ना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से ना आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। मन को समझ में आ जाता है कि भाई ये बड़ा ढीठ इंसान है, इसके साथ रहना है तो इसकी माननी पड़ेगी। Absolutely. और जब Absolutely. मन को ये बात समझ में आ जाती है कि बड़ा ढीठ इंसान है, इसकी माननी पड़ेगी, तो मन फिर आपके काबू में आ जाता है। फिर जो प्लेजर है ना, जो सेंसेशंस आपको भटकाती हैं, वो सेंसेशन साइड में हो जाती हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, और जब विल पावर स्ट्रांग हो जाती है तो आपका फोकस सिर्फ आपके गोल पे आ जाता है।
जब छोटे छोटे प्रयोगों में आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, तो जिंदगी के बड़े बड़े जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना, जब जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, तो विल पावर बड़ी पक्की हो जाएगी, क्योंकि मन को समझ में आ गया है इसके साथ रहना है तो इसकी माननी पड़ेगी। Absolutely, absolutely. I actually remember one of the thing from my childhood. हमारे एक सर थे और वो कहते थे अगर सुबह जल्दी उठना है तो अपने तकिए को बोल के सो कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। क्या बात है, सो नाइस, ब्यूटीफुल। So that is something, your willpower is something which you should command. Your mind should Absolutely. not command you. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ओपन सेशंस बहुत सारे करते हैं, कोर्सेज करते हैं। तो सबको कहता हूँ, सब लोग कहते हैं, खासकर सुबह उठने की बात से याद आया, क्योंकि लोग जैसे बच्चे आजकल 10 बजे 11 बजे, आप मानोगे नहीं, लॉकडाउन में भी आई वेक अप एट 5:30 AM। लॉकडाउन हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन हम 5:30 6, 5:30 6 के आसपास उठ जाते हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है अपने आप को नियंत्रण रखना। सेल्फ Right. डिसिप्लिन is the practice of training your mind and body to do the right action। तो ट्रेनिंग कैसे होगी बॉडी और माइंड की? जब आप सही कर्म करेंगे, सही दिशा में रखेंगे और अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग रखेंगे। तो सुबह उठना बेशक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अचीवमेंट महसूस करवाता है। जिस दिन आप सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, आपको कितना अच्छा महसूस होता है कि बाकी दुनिया सो रही है, आप उठ गए हैं। अब जिंदगी में कुछ करने का टाइम है, कुछ आगे बढ़ने का टाइम है और मजे करने का टाइम है। तो Ab- आपको एक ना बेसिक अचीवमेंट महसूस होती है। जब वो बेसिक अचीवमेंट ना बहुत बहुत डीपली आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने सोचा और कंप्लीट कर लिया। आपने एक टारगेट रखा, आपने कंप्लीट कर लिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है। Hmm, hmm. गर्व जो आता है ना जिंदगी में, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, गर्व आता है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ मतलब मेहनत। और अपना अभिमान आता है आपका सफलता से। जब सफलता आ जाती है तो अभिमान आना शुरू हो जाता है। लेकिन अहंकार आता है जब आप दूसरों का उपहास करना शुरू कर देते हैं, जब आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों के खिल्ली उड़ाते हैं कि मुझसे बेहतर कोई है नहीं। तो गर्व पे काम करो। गर्व आता है मेहनत से, पुरुषार्थ से। सो जितनी मेहनत करोगे, जितना सुबह उठने की कोशिश करोगे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपको करना है, जो भी टारगेट छोटे छोटे रखें, 2 ही चीज लिखो दिन में टू डू लिस्ट में, लेकिन कंप्लीट करो। 25 चीजें लिख के कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा डिसअपॉइंटमेंट होगी। Right, right. Now we were talking about, finding ourselves. Then we are also, a lot of people talk about purpose of life, हम्म। हम्म। finding purpose of life. यस। But no one tells us how to find it. Can you throw some light on this? देखो, पर्पस आपकी जिंदगी में, पहले मैं एक चीज बताता हूँ, पहले वो समझ में आएगा। अगर वो समझ में आ जाए तो उसके बाद मैं थोड़ी डेप्थ में बताऊंगा। द पर्पस ऑफ लाइफ, of everyone's life, is to find their unique potential, their unique gift, which God has given you, which God has created you for it. And the meaning of life is to give it away. तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि पर्पस होता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई यूनिकनेस है, कुछ है जो ऊपर वाले ने दिया है आपको। लेकिन आप क्या है ना, आप दूसरे की पटरी को देख के, क्योंकि वहां पे सक्सेस दिख रही है, जो चकनाचौंध दिख रही है, वहां पे चलना शुरू कर देते हो और अपने टैलेंट को भूल जाते हो, अपने पोटेंशियल को भूल जाते हो। पर्पस इज टू फाइंड योर यूनिकनेस। वो यूनिकनेस कुछ भी हो सकती है, वो बात करने की भी हो सकती है, चुटकुले सुनाने के लिए भी हो सकती है, कहानियां सुनाने के लिए भी हो सकती है, कहानियां लिखने की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट खेलना भी हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हो सकता है, एक्टिंग, डांसिंग। सबकी तरफ मत भागो जहां सब भाग रहे हैं, उस रट में कुछ नहीं मिलेगा। वो एक रैट रेस है। इवन इफ यू विन द रेस, यू विल स्टिल बी अ रैट। Right. अपना रास्ता खुद ढूंढो। अपना रास्ता में समय लगता है, थोड़ा मुश्किलें आती हैं, थोड़ा, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता ना, अपने अंदर झांक के नहीं देखते। लेकिन जिस दिन अपना रास्ता मिल जाएगा ना, उस दिन आपको नजर आ जाएगा कि वो रास्ता बड़ा यूनिक है। उसमें सिर्फ आप अकेले हो और आप अपनी जर्नी पे चलते चले जाओगे, सक्सेस मिलती जाएगी। और वो टैलेंट पता है क्या है? जो एफर्टलेसली फ्लो करे। तो ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर एफर्टलेसली फ्लो करती है? ये सोचो, ये थोड़ी गहराई से सोचना पड़ता है अपने अंदर। जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया तो मुझे समझ में आया था कि ये तो मैं स्कूल टाइम या बचपन से करता रहा हूँ। आई बीन हेल्पिंग पीपल, आई बीन इंस्पायरिंग देम, आई बीन लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, ये मैं स्कूल से करता आ रहा हूँ, बट इसका कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था। लेकिन जब उसने कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ है तो खोजो जरा, तो मैंने खोजना शुरू किया। मैंने कहा हाँ यार, ऐसा कुछ करते हैं कि समथिंग विच कैन कनेक्ट टू पीपल, समथिंग विच कैन टच पीपल, something which can inspire them, something which can touch their heart and and their chords। ऐसा कुछ करने में मजा है जिंदगी में।
तो जो भी आप करना चाहते हो, ऐसा टैलेंट जो एफर्टलेसली फ्लो, तो सोचो जरा ऐसा कौन सा एफर्ट है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो एफर्टलेसली फ्लो हो रहा है। तो थोड़ा अपने अंदर झांको, थोड़ा अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ, तो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। या अपने अपने माँ बाप से पूछो, या बचपन में जाओ, बचपन में जाके मिल जाता है राइट, राइट, कि बचपन में जाके देखो यार ऐसा क्या है, कौन सी चीज में बहुत मजा आता है, बहुत फ्लूइड है, इसमें कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं बस करता ही चला जाता हूँ। चाहे वो लिखना भी हो सकता है, डांस करना भी हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एफर्टलेसली फ्लो करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट। सो सोचो जरा। So when we were talking about introspection, हम्म इंट्रोस्पेक्शन के कुछ अगर टेक्निक्स अगर आप बताएंगे तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करने का सबसे आसान तरीका, मैं जो बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, लिखें, डियर डायरी बनाओ जरा। हमने लिखना बंद कर दिया है क्योंकि हमें लगता है सब दिमाग में छप जाएगा। छपने से ऐसे नहीं छपता। अपने साथ बैठो, लिखो आज क्या हुआ, लिखो अपने पास्ट के बारे में। क्लेंजिंग होनी शुरू होती है सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारी बातें ना अंदर दबी हुई हैं। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने नहीं पूरी की, बहुत सारा हर्ट है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बहुत सारे बैगेजेस हैं। पहले उसको छोड़ना जरूरी है। वो छूटते कैसे? क्लेंजिंग से, लिखने से। अपने आप के लिए लिखता है ना इंसान, जैसे एक जर्नी होती है, द जर्नी ऑफ हु एम राइट, आई हैव रिटन दैट एंड आई स्टिल कीप राइटिंग इट। उसमें क्या होता है, आप लिखते चले जाते हो कि यार मैं क्या हूँ, मैं कौन सा इंसान हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, क्या मैं अपने बारे में लिखता है इंसान। एम आई सेंसिटिव, एम आई ओबीडियंट, एम आई गुड, एम आई दिस, एम आई दैट, इफ आई एम सेंसिटिव व्हाई एम आई सेंसिटिव, बचपन में कुछ हुआ था जिसकी वजह से सेंसिटिव हूँ, समझे? वाई एम आई नॉट इनसिक्योर, मुझे कोई कोई परेशानी क्यों नहीं होती दूसरों की सक्सेस देख के, उसका क्या रीजन है, क्या मैं बिकॉज एम आई बिलोंगिंग टू वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो बहुत सारी बातें ना आपको खोजने से मिलेंगी। आप लिखना शुरू करो अपने शब्दों के साथ। सी नो, व्हेन यू राइट ना, the moment you start writing, your thinking also starts becoming structured and ordered। तो जिन जिन को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ना, उनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है। सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, और कर्म कुछ और कर रहे हो। इसे कहते हैं इच्छा शक्ति, वाक शक्ति और क्रिया शक्ति। इसके बीच में कोई तालमेल नहीं है। जब इच्छा शक्ति जो सोच रहे हो, और वाक शक्ति जो बोल रहे हो, और जो कर्म कर रहे हो जो क्रिया शक्ति, तीनों में एक अलाइनमेंट आ जाती है, तो क्या होता है, आपके शब्द भी फ्लो करते हैं, आपके एक्शंस भी उन शब्दों को अलाइन करते हैं, सिंक्रोन। राइट, राइट। यू आर नॉट ऑडिबल। Guys, stay connected. Mr. Malhotra will join us again. Hi. Yes. Is it better? So I think I had to refresh the chart. हाँ, तो हम बात कर रहे थे इच्छा शक्ति, वाक शक्ति, क्रिया शक्ति। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जब आ जाता ना, तो क्या होता है, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे आएगा? सिंपल बता देता हूँ कि जितना लिखोगे रोज, अपने रोज के बारे में लिखो कि आज क्या हुआ मेरे साथ। इतना भी लिख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आज मुझे कैसा लगा, मुझे क्या महसूस हुआ, इसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे क्यों बुरा लगता है। तो थोड़ा सा अपने बारे में जब लिखना शुरू करते हैं, जब कागज पे, और कागज पे लिखो, लैपटॉप आईपैड में मत लिखो, कागज पे लिखो, पेन से लिखो, अपने आप धीरे धीरे स्ट्रक्चरिंग आ जाती है। राइटिंग इज अ ब्यूटीफुल हैबिट टू क्लेंस योर सोल। Right, right. And it will also give you a leeway to your self introspection. It is the most simplest form of self introspection. Absolutely, absolutely. This reminds me of one thought, and I would like to recite it. So it says, जो पत्थर चोट को सहता है, नहीं सहता वो कंकर हो जाता है, जो सहता है वो शंकर हो जाता है। वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, क्या बात है। So with this thought, I want to take the next question. It is about failures and disappointments in life. How to tackle disappointments? How to tackle failures? अरे जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा ही रहेगा, ये अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, और ये सत्य है। देखो, जब तक जीवन है संघर्ष रहेगा, परेशानियां रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी। लाइफ देखो, हार्ट बीट कैसे होती है? अगर हार्ट बीट जब फ्लैट हो जाती है, इसका मतलब क्या है? दैट यू आर डेड। सो दैट बेसिकली मींस लाइफ विल कीप कमिंग अप, लाइफ विल कीप मूविंग डाउन। तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो ये जिंदगी का दस्तूर है। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी करियर हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। आप दोनों को समान भाव से देखें, ना अपमान का भय और ना ही सम्मान का मोह।
इसे कहते हैं staying centered and staying balanced. You see both the things equally, absolutely with the balance. ये कंट्रोल से आता है, ये संयम और नियम से आता है। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फेलियर से भी खुद को अटैच कर लेंगे तो उसी के अंदर दब के खत्म हो जाएंगे, परेशान होते रहेंगे कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। फेलियर देखो, फेलियर तब होता है जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ और सामने कुछ गड्ढा है, मैं गिर गया। गिरने को फेलिंग कहते हैं, फेलियर नहीं कहते। गिर के उठना आपके हाथ में है। आप फेलियर तब कहते हो जब आप मैदान छोड़ के भाग जाते हो। फेलियर हमारी जिंदगी का तब होगा जब हम ऊपर चले जाएंगे, जब हम दुनिया छोड़ देते हैं, तब उसे फेलियर कहते हैं। उससे पहले तो एक प्लेग्राउंड है, जितना खेलना है खेलो, छक्के मारने हैं मारो, आउट होना है आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी विकेट है जहां पे स्टंप्स नहीं है पीछे, यहाँ पे बस बॉल आ रही है, जिंदगी बॉल फेंक रही है, तो कभी छक्का मारो कभी चौका मारो, आउट हो ही नहीं सकते क्योंकि पीछे स्टंप्स नहीं है, कोई कैच करने वाला नहीं है। राइट। यहां से इस प्लेग्राउंड में आप फेलियर तब कहलाओगे जब आप घुटने टेक दोगे और यहां से कहोगे कि मैं प्लेग्राउंड छोड़ के भाग रहा हूं। जब आप जिंदगी को छोड़ के भाग जाते हो तब आप फेलियर कहलाते हो। उससे पहले कोई फेलियर नहीं, उससे बस फेलिंग है। यू कीप फेलिंग, यू कीप मूविंग डाउन, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू राइज अप, यू मूव फॉरवर्ड। बाउंसिंग बैक कहते हैं ना इसे जिंदगी में। राइट। होता रहता है, कुछ चीजें काम करेंगी, कुछ चीजें काम नहीं करेंगी। आप कुछ सोचोगे, कुदरत कुछ और करेगी, कुदरत कहीं और आपको पहुंचाना चाहेगी, आप कहीं और जाना चाहोगे, तो ये कश्मकश चलती रहेगी। बट जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात सब स्टूडेंट्स के लिए भी, जब भी कहीं गिर जाओ, कहीं अटक जाओ, कहीं फंस जाओ, सबसे आसान तरीका है उससे बाहर आने का, उस चीज से सीख लो कि इसके अंदर क्या सबक छुपा था जिसकी वजह से ऊपर वाले ने मुझे ये फेलियर दिया या फीलिंग दी। ये दिक्कत इसलिए आई क्योंकि मैं कुछ सीखा नहीं, मुझे कुछ सीखना। इस फेलियर से या इस फीलिंग से सीख लो और आगे बढ़ो बस। वो सबक जिंदगी में काम आने वाला है, ये बड़ा जरूरी है। राइट। राइट। एक और इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, हम डिसएसोसिएशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी लोग इस चीज को थोड़ा गलत समझ के या फिर मिसकंसेप्शन की वजह से वो वैराग की तरफ भी चले जाते हैं। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, वी हैव टू बी इन सोसाइटी। या देखो, वैराग्य की तो बात ही नहीं कि हमने इस शब्द को तो यूज ही नहीं किया कहीं पे भी। हम तो कह रहे हैं कि एक आत्म संतुलन मेंटेन कर लो। अगर किसी को 100% देना है रिलेशनशिप में तो 100% ही दो ना, 1000% देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता हमारे साथ? हम कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यही इंसान हमारी जिंदगी का दारोमदार है। बट ऐसा नहीं होता ना। उस इंसान से पहले भी आप खुश थे, उस इंसान के चले जाने के बाद भी आप खुश रहोगे। तो किसी भी एक इंसान, किसी भी एक प्रोफेशन, किसी भी एक जॉब, किसी भी एक करियर, वहीं पे सारी चीजों को दारोमदार डालना एक्सेस हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है। बैलेंस बड़ा जरूरी है। कुदरत भी हर चीज बैलेंस में करती है। मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट। सनलाइट आती है 12 घंटे के लिए, उसके बाद सनलाइट चली जाती है, ताकि आप आगे आने वाली 12 घंटे की सनलाइट को वैल्यू कर सकें। राइट। राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लांट्स हमें देते हैं, हम कुछ छोड़ते हैं। यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इट्स गोइंग इन बैलेंस। अगर प्लांट्स गायब हो जाएं पूरी धरती से तो क्या होगा? हम 1 घंटा भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब कुदरत से सीखना बड़ा जरूरी है कि हर चीज बैलेंस, मॉडरेशन बड़ा जरूरी है। आगे कदम बढ़ाने बड़े आसान होते हैं, पीछे हटना मुश्किल होता है। तो संभल के ही आगे बढ़ाओ ना कदम। इतना राइट। ज्यादा न्यौछावर करने की जरूरत नहीं है खुद को किसी पे भी। एब्सोल्युटली राइट। सो सी, मैंने एक चीज पढ़ी थी, सॉरी टू कट यू इन, प्लीज। कि थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, वरना दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। वेरी वेल सेड। पीठ को पायदान समझ लेती है। बहुत ये बढ़िया। उन लोगों के लिए जो नौछावर कर देते हैं खुद को पूरा का पूरा। Right, right. So you were talking about revisiting your childhood. You were also talking about introspecting. But sometimes it's very difficult to rescue yourself in tough times. How to tackle it? देखो, जब भी कोई मुश्किल समय आ जाता है तो अगर खुद से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो या तो किसी गाइड को ढूंढ लो, किसी मेंटर को ढूंढ लो, किसी गुरु को ढूंढ लो, क्योंकि अटक गए हो, अभी ना कुछ समझ में आ रहा है, आंखों के आगे अंधकार है। तो बड़ा जरूरी है, चाहे वो माँ बाप भी हो सकते हैं आपके गाइड, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन, आपका स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। जिस भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, बड़ा जरूर मुझे लगता है हमें ना निरंतर गाइड्स को या मेंटर्स को या टीचर्स के टच में रहना चाहिए। बड़ा जरूरी है,
क्योंकि हम जिंदगी में भटकते चले जाते हैं वरना, और भटकना जायज है क्योंकि जिंदगी बहुत सारी चीजें थ्रो करती रहती है। तो जो इंसान जिंदगी में तजुर्बे में एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा, इसलिए गुरु का बड़ा ही बहुत ही महत्वता है हमारे पूरे गुरुकुल सिस्टम के अंदर, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, हमारे वेद पुराणों में गुरु को बहुत महत्वता दी गई है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि गुरु के हमेशा साथ रहो, उनका हाथ पकड़ के रखो, सरेंडर करते रहो उनको, उनसे सीखते रहो, समझते रहो, खुद की क्वेश्चनिंग भी करते रहो, खुद का इंट्रोस्पेक्शन भी करते रहो, लेकिन गुरु से ग्रहण भी करते रहो। एक कहानी सुनाता हूँ बड़ी प्यारी गुरु यस। की महत्वता के ऊपर। मैं आपसे अगर पूछूं बालाकृष्ण कि एक चींटी है, और चींटी को अगर मुंबई से पुणे जाना है तो चींटी को कितना समय लगेगा बताओ? मेरे ख्याल से उसकी स्पीड पे तो नहीं मायने रखता है, लेकिन उसके हौसले पे जरूर मायने रखता है। हाँ, लेकिन फिर भी हौसला भी रखेगी तो भी पता नहीं कितने महीने, कितने साल, शायद जन्म लग जाए चींटी को मुंबई से पुणे पहुंचने के लिए। राइट। लेकिन एक तरीका है कि चींटी 3 घंटे के अंदर पुणे पहुंच सकती है। ओके, हाउ? वो तरीका बड़ा सिंपल है। अगर मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ, चींटी मेरे कंधे पे बैठ जाती है, तो चींटी अपने आप मुंबई से पुणे पहुंच जाती है 3 घंटे के अंदर। राइट। इसका मतलब यह है कि अगर आपने गुरु का हाथ थाम लिया तो आप यहाँ पे बैठ के सो भी जाओगे तो भी आपको अपने डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। वेरी 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 वेल सेड, एंड दिस इज अ वेरी डीप थॉट। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि इसलिए मैं हमेशा, इसलिए टीचर्स डे पे हम लोगों ने फॉर्म किया था ना शेयरन ग्रुप, ओके। इसलिए चिल्ड्रंस डे पे हम लोगों ने लॉन्च किया था। देयर वाज अ डीप मीनिंग बिहाइंड इट कि बड़ा जरूरी है अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने गाइड। देखो, टीचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे कुछ सीखने को मिल जाए वो आपकी जिंदगी का टीचर है, गाइड है, मेंटर है। राइट। वो एक यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है, वो एक गाना भी हो सकता है, वो कहीं किताब में लिखे हुए कुछ चंद शब्द भी हो सकते हैं। अगर तो फिजिकल फॉर्म में कोई मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। और टीचर्स भी जिंदगी में बदलते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाओ। तो बड़ा जरूरी है अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ते जाओ, एक ऐसे एनवायरमेंट में खुद को नर्चर करते रहो जो आपको पुश करते रहे, जो एम्पावर करें, अपलिफ्ट करें, आपको एनकरेज करें, बड़ा जरूरी है। और सही दिशा दिखाएं। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि आपके पास जितना मर्जी टैलेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सही मार्गदर्शक कोई नहीं है तो सारी हुनर बेमायने हैं, बेकार है, बेफजूल है। क्योंकि हुनर बिखरते देर नहीं लगती, मार्गदर्शक होना जरूरी है। जब अर्जुन बैटल के अंदर परेशान हो गए थे कि इस तरफ मेरे अपने ही लोग हैं, मैं इनको कैसे मारूं, तो श्री कृष्ण ने मार्गदर्शक बन के उन्हें समझाया था। मार्गदर्शिता बड़ी जरूरी है जिंदगी में। टैलेंट along with right guidance can achieve the pinnacle of success। बिना गाइडेंस के जिंदगी में कुछ होगा नहीं बालाकृष्ण, ये सत्य है। राइट। राइट। तो जब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए वी आर वेरी डिटर्मिन्ड, इट आल्सो इनकलकेट्स एम्बिशियसनेस। करेक्ट। एम्बिशियस, एम्बिशियस और बीइंग ओवर एम्बिशियस, ये दो फिनोमेना है। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट? देखो, आप एम्बिशियस हो, आप ओवर एम्बिशियस हो, आप ओवर 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 इनटू 10 100 पावर एम्बिशियस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आल्सो थिंक अबाउट द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ओके। इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट द वेल बीइंग ऑफ अदर्स तो सब चीजें बेमायने हैं। क्योंकि हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि हम वी वांट टू फील वैल्यूड। हर इंसान जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है वो इसलिए बिकॉज यू वांट टू फील वैल्यूड, यू वांट टू फील यू मैटर टू दिस एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ने बड़ी कमाल की हमारे अंदर एक फीलिंग डाली है कि जब आप किसी भिखारी की मदद करते हो, सबसे पहले आपको अच्छा लगता है, बाद में उसकी जरूरत पूरी होती है। ये फीलिंग कहाँ से आती है? किसी ने सोचा कभी? डीप जाके सोचो कि आपको अच्छा क्यों महसूस होता है। क्योंकि नेचर ने कहा है बेटा ये फीलिंग होगी तभी तो आप यूनिवर्स के साथ को एग्जिस्ट करोगे, वरना एक दूसरे को मार दोगे, काट दोगे, जला दोगे। राइट। तो ये फीलिंग को आप बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आप डोनेशन देते हो, इसलिए चैरिटी करते हो, इसलिए काइंडनेस है, इसलिए जनरोसिटी है, इसलिए सर्विस है। तो आप जो मर्जी अचीव करना चाहो जिंदगी में, करोड़ों लाखों अरबों रुपए जमा करो, कुछ भी करो, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस। थिंक अबाउट द वेलबींग ऑफ अदर्स। आपके किसी भी कर्म से किसी और का नुकसान हो रहा है तो वो सही कर्म नहीं है। आपके किसी भी कर्म से सिर्फ आपका अच्छा हो रहा है और बाकी सबका नुकसान हो रहा है, वो भी सही कर्म नहीं है। आपके किसी भी कर्म से आपका अच्छा हो रहा है, बाकी सबका भी अच्छा हो रहा है, तो सही कर्म है। करो जितना मर्जी करो। बहुत सारे लोगों ने बहुत करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। मार्क जगरबर्ग ने बहुत पैसे कमाए थे, इतने सारे डोनेट कर दिए। बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स ने इतने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, डोनेट कर दिए। आज की डेट में इतना सब कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। तो किसी ने रोका थोड़ा ना आपको। राइट। राइट।
मैंने कहीं बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी, बहुत साल पहले की बात है। Whenever God gives you talent, He actually doesn't give it to you. He gives it through you. तो आपके थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद होनी होती है, आप तो सिर्फ जरिए होते हैं, इसलिए आपको टैलेंट दिया जाता है, उस टैलेंट के बेस पे आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, राइट, या आपको फेम मिलता है, नेम मिलता है, पावर मिलता है। वो इसलिए मिलता है ताकि आप दूसरों के लिए करना है, क्योंकि आपको इसलिए दिया जा रहा है, अपने लिए रखने के लिए नहीं। अपने लिए क्या करोगे? अकेले आए हो, अकेले जाओगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। राइट, राइट। तो ये तो सत्य है, और इस बात को हम, अब मुझे लगता है समय आ गया है कि गहराई से समझ लें, क्योंकि ये बात हम समझते नहीं है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यू आर जस्ट द मीडियम टू डू एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपकी बातों में बहुत ज्यादा एक डीप रूटेड वैल्यू सिस्टम नजर आ रहा है, राइट? और फिलहाल की जो जनरेशन है, आई विल नॉट से दे डोंट हैव इट, दे आल्सो हैव इट, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेड होता जा रहा है। इफ यू कैन टच दिस टॉपिक आल्सो, हाउ इम्पोर्टेंट इज वैल्यू सिस्टम इन लाइफ? देखो, बिना बिना कैरेक्टर के, बिना इंटेग्रिटी के, बिना वैल्यूज के तो आपको कोई अस्तित्व नहीं है। फिर तो आप कोई भी आएगा फिर तो आप उस चूहे की तरह हो जिसको कोई भी रोटी दिखाएगा और अपने पिंजरे में बंद कर लेगा। आजकल लोग यही तो कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग यही तो करते हैं। आपको बेट देते हैं और आप उस बेट के अंदर आ जाते हो, और उस बेट के अंदर पैसा है, नाम है, पावर है, कुछ भी बेट देते हैं और आपको कैद कर लेते हैं। ऐसा लगता है आपको कि वहां पे बहुत कुछ है, लेकिन आप कैदी बन जाते हो। तो कैद होती है, चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे हीरे का हो, चाहे प्लैटिनम का हो, चाहे कोई भी हो। और मुझे कैद में रहना पसंद नहीं है। मैं खुला पंछी हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ, और अपने तरीके से ही जीता आ रहा हूँ। जिंदगी से सीखते चला जाता हूँ, आगे बढ़ता चला जाता हूँ। बड़ा सिंपल है। बिना आपके बेस के, जब आपकी नींव ही कुछ नहीं होगी, एक पेड़ की जड़ें बड़ी जरूरी होती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं। देखो, जब तक जड़ें मजबूत होंगी तो शाखाओं पे पत्ते गिर भी जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे। राइट, लेकिन अगर जड़ें ही कमजोर होंगी तो कोई भी हवा का झोंका आएगा और पेड़ फटक से ढह जाएगा। और आजकल लोगों के साथ यही हो रहा है, जरा सा कुछ हो जाता है, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, घुटने टेक देते हैं। तो क्योंकि हर इंसान को ना आजकल, जनरेशन तो हमारी ही है, हम ही इस जनरेशन का हिस्सा है। हर इंसान को जल्दबाजी है बड़ी, कि जल्दबाजी है, कहीं पहुंचने की जल्दबाजी है। कहाँ पहुंचने की जल्दबाजी है, ये तो सोचो जरा। कौन सी रेस है? लाइफ इज नेवर अ रेस। हमें लगता है कि जिंदगी रेस है, किसी ने हमारे दिमाग में डाल दी। कौन सी रेस है? इसका एक बड़ा गहरा थॉट है। अगर आप कहो तो मैं कहूं, अगर समझ में आ जाए लोगों को। हम प्लीज। कहते हैं कि ये रेस है, जिंदगी एक रेस है। तो रेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? डॉक्टर बालाकृष्ण, डॉक्टर करा, सॉरी, बालाकृष्ण रेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जीतना ही होता है, जीतना। जीतते कैसे हैं रेस को? डिटर्मिनेशन के साथ में और हौसले के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में। और जीतते तब हैं, जीतने का मतलब है कि रीचिंग टू द फिनिश लाइन एज क्विकली एज पॉसिबल, तभी आप जीते ना। फिनिश लाइन पे आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है, जो जल्दी पहुंच जाता है वो रेस जीत जाता है। यस और नो? राइट। अब जिंदगी की फिनिश लाइन क्या है, सोचो। मौत। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स आवर एंड। सवाल का जवाब खुद आपके सामने है। वेरी वेरी वेल सेड। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आप जिसको रेस समझ रहे हैं वो क्या है। वो आप गलत गलत किसी ने मिसकंसेप्शन डाल दिया है, कहीं फंस गए हो दिमाग में, वहां से बाहर निकलो, समझो तो सही। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस इज टू विन द रेस। हाउ डू विन द रेस? बाय रीचिंग द फिनिश लाइन एज क्विकली एज पॉसिबल। व्हाट इज द फिनिश लाइन ऑफ लाइफ? इट्स डेथ। यू आर, not even sprinting, you are sprinting at xyz speed towards the finish line, towards the death. Is this what you want? इसलिए इम्पेशंस है बच्चों में आज की डेट में, राइट, जल्दबाजी है, ठहराव नहीं है। क्योंकि आप फिर भागने के चक्कर में भाग कहाँ रहे हो? ये तो जवाब आपको खुद ही मिल गया है। राइट। तो आसपास की जिंदगी को महसूस नहीं करो ना। रोड पे कभी चल के देखते नहीं कि लोग जिंदगी में कैसे रहते हैं? मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मैंने कहा जिंदगी से वाकिफ हो जाओ, रोड पे चल के देखो लोग कैसे जिंदगी बिता रहे हैं, तब समझ में आएगा कि जिंदगी क्या क्या वैल्यू होती है यार। जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, जो रोड पे सोते हैं, पटरियों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, कभी उनसे बात की है? नहीं की तो करके देखो, तो समझ में आएगा जिंदगी क्या है और जिंदगी के मायने क्या है। तब समझ में आएगा कि आप कितने प्रिविलेज्ड हो, इतना सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, उसको वैल्यू करो और जिंदगी में आगे बढ़ाओ। Right, right. Shall I move to the next question? या प्लीज गो अहेड। Yeah. So next question is, कई बार हम
कुछ सिचुएशंस को दूसरों के चश्मे से देखते हैं और कुछ कुछ चीजों को हमारे अपने चश्मे से देखते हैं, तो देयर इज अ बायसनेस ऑलवेज। हमें हमेशा लगता है कि हम सही हैं, दूसरा कोई गलत है ज्यादातर केसेस में, कि आई हैव बीन पुटिंग माय एफर्ट्स, आई हैव बीन डूइंग एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट, ये लेकिन फिर भी हमें मिल क्यों नहीं रहा? यस देखो, ये समझना बड़ा जरूरी है। आपने 1000% दे दिया या 2000% दे दिया किसी काम में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी प्रोफेशन में, किसी करियर में, किसी रिलेशनशिप में भी, या कुछ भी, हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ दे दिया, अब हमें मिल जाना चाहिए, वी डिजर्व इट मोर देन एनीबॉडी एल्स। ये डिजर्विंग जो है ना, ये आप तय नहीं करते हो, ये ऊपर वाला तय करता है। God will decide when you will deserve it, at the right time you will be given the perks and the benefits of it। क्योंकि हमें तो लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, लेकिन हमारे लगने से कुछ नहीं होता। क्योंकि हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों लोग आपसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको दिख नहीं रही, आपको तो सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है ना। आपको थोड़ी ना दिख रहा है कि कितनी रातें वो जाग रहा है। जब तक रातें नहीं जागते हैं, तब तक नसीब नहीं जागता। इतना पता है ना सबको कि नहीं, कि नसीब को जगाने के लिए रातों भर जागना पड़ता है। तो आप ये कैसे तय कर सकते हो कि यार मैंने मेहनत कर ली है, मुझे अभी क्या भी मिल जाना चाहिए? ऐसा नहीं होता, ये कुदरत तय करती है। आपको जब आप सक्षम हो जाओगे ना उस सक्सेस को ग्रहण करने के लिए, ऊपर वाला देगा भी तभी। अक्सर हमें लगता है कि हम तैयार हैं सक्सेस लेने के लिए, लेकिन 99% ऑफ पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सक्सेस, बिकॉज सक्सेस यहाँ दिमाग में चढ़ जाती है, हैंडल ही नहीं होती लोगों से, और फिर अपॉर्चुनिटी आके फट से निकल जाती है और दोबारा जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तो अपने आप को तैयार करो सक्सेस ग्रहण करने के लिए। जब अपने अंदर वो क्वालिटी, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी को कैसे बनाया जाता है, या टीम का कप्तान कैसे बनाया जाता है? जब टीम के बाकी सभी मेंबर्स या पूरा देश देखता है कि इस इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसके अंदर कैरेक्टर है, इसके अंदर इंटेग्रिटी है, सबको साथ लेके चलता है, इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो वो लोग चूज करते हैं इसको कप्तान बनाया जाए। ऐसा तो नहीं है कि पहले वो कैप्टन बन जाए तो उसके बाद ये सारी क्वालिटीज इनहेरिट करता है। पहले आपके अंदर वो क्वालिटीज होने चाहिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने की, फिर लोग आपको पुश करेंगे कि आप हमारे प्रेसिडेंट बनो। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा जरूरी है ना इस बात को समझना कि सक्सेस के लिए पहले वो ग्रहण करने की क्षमता, शक्ति, क्वालिटीज अपने अंदर इनहेरिट करो, फिर आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटेड है। राइट राइट। एक और बात मुझे याद आई, और ये भी बचपन से ही एक एक मेमोरी है, वहां से याद आती है। तो हमारे दादाजी कहते थे कि ह्यूमिलिटी सीखनी है तो घास से सीखो। सुबह हम उस पे चलते हैं और वो फिर थोड़े देर बाद जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है वापस खड़ी हो जाती है, मरती नहीं। ह्यूमिलिटी के ऊपर अगर आप कुछ अगर कहना चाहें तो। बड़ी सिंपल सी बात है यार, जमीन से जुड़ना तो बड़ा जरूरी है। अगर जमीन पे पाँव नहीं होंगे, पाँव जमीन पे होने चाहिए, देखना आगे है, लेकिन पाँव तो जमीन पे ही रहने चाहिए ना। जितना उड़ने की कोशिश करते हैं उतना हम गिर भी तो चले जाते हैं ना। तो छलांगे नहीं लगानी है, चलते चले जाना, निरंतर प्रयास करते चले जाना, खुद को जमीन से जोड़ते हुए चले जाना। मैंने क्या कहा, जिंदगी से वाकिफ हो। जिंदगी से वाकिफ होने का मतलब जमीन से जुड़ना, कि आसपास क्या हो रहा है उसे देखना, उसको महसूस करना, उसको समझना। इतना बेसिक कंपैशन तो होना चाहिए ना हमारे अंदर लोगों के लिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर ये भी नहीं होगा तो हम एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ेंगे कैसे? हमें लगता है कि सक्सेस सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है, सब साथ में चलते हैं तब जाके सक्सेस। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने अकेले सब चीजें अचीव की हों। यू विल नीड अ टीम, you will need your management, you will need your board of directors, you will need your people, you will need your loved ones। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा, it's like, have you seen the film I Am Legend from Will Smith? आप अकेले हो लेकिन दुनिया की सारी दौलत आपके पास है, सारी गाड़ियां आपके पास है, लेकिन आप फिर भी डिप्रेस्ड ही रहोगे ना, परेशान ही रहोगे, ग्रीफ में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको साथ चाहिए ना। तो साथ के लिए जमीन से जुड़ना जरूरी है ना। लोगों को साथ लेके कैसे चल पाओगे? खुद आसमान में रहोगे, लोग जमीन पे रहेंगे, कैसे जुड़ोगे भाई? सबको हाथ पकड़ो, खुद भी ग्रो करो और साथ में उनको भी ग्रो करवाओ। क्या दिक्कत है? जिंदगी बड़ी आसान सी है, सिंप्लीफाई करो। राइट। Another question, I would like to understand motivation and inspiration. Both are two different phenomena. Motivation is mostly something जहाँ जो हमें बाहर से external circumstances how to be inspiring and how to become inspiration for others. देखो, when you genuinely decide to devote yourself or genuinely decide to devote a part of you towards the service of others, और कहीं ना कहीं जब आपको
दूसरों के अंदर ये बड़ी अजीब सी, थोड़ी बहुत गहरी बात है, अगर समझ सको तो जेन फिलॉसफी में कहा जाता है, जेन या बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, ये मैं हूं हिमांशु मल्होत्रा, ये पूरी दुनिया है, बाकी सब, द होल वर्ल्ड, जब ये जुड़ जाते हैं तो कायनात बन जाती है। दिस इज द फीलिंग ऑफ वननेस। इसका मतलब इसका मतलब तू है, मैं हूं, ऐसा नहीं है। तू भी मैं हूं और मैं भी मैं हूं। राइट राइट। जब मैं अपने आप में आपको देख लेता हूँ और आपके अंदर खुद को देख लेता हूँ, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ वननेस। जब मुझे आपका दर्द भी अपना दर्द लगता है, आपकी खुशी भी अपनी खुशी लगती है, मैं उसमें इतना झूमता हूँ, तो एक वननेस क्रिएट हो जाती है। और जब वननेस क्रिएट हो जाती है तो इंस्पिरेशन अपने आप फ्लो करती है। तो राइट। दूसरों से, क्योंकि देखो कुदरत ने भेजा ही आपको इसीलिए है, कुदरत ने भेजा आपको सर्विस के लिए है, क्योंकि सर्विस करके ही यू विल फील वैल्यूड, और कोई रास्ता ही नहीं है वैल्यूएशन का। वरना फेम पावर मिल जाती है, लोग उसके बाद भी मिजरेबल हो जाते हैं ना। क्यों मिजरेबल हो जाते हैं? बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे कि यार, हमें लगा था, लोगों को लगता है कि यार फेमस हो गए, पैसा आ गया, लेकिन वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, मैं क्यों खोखला महसूस कर रहा हूँ? वो खोखलापन इसलिए बिकॉज you don't feel that you matter to this existence. You don't feel that you are valued. You don't feel that you are contributing in some form or the other. क्योंकि अभी तक आप अपने लिए करते आ रहे थे ना, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट। जैसे ही आप जमीन पे उतरते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड। क्या मदर टेरेसा को बड़े बड़े लेक्चर्स देने की जरूरत थी इंस्पायर करने के लिए? उन्होंने अपने एक्शन से इंस्पायर किया ना, उन्होंने जाए लोगों की मदद करनी शुरू की। मलाला यूसुफ अफजाई ने कोई झंडे थोड़ा ना गाड़े कि बड़ी बड़ी स्पीचेस। उसने कहा कि मुझे गर्ल एजुकेशन, मुझे लगता है कि हर इंसान को मिलनी चाहिए, और अगर लोगों ने उसका अगेंस्ट किया तो उसने अपना एक्शन लिया। तो राइट। इंस्पायर करने के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग है। जब ये फीलिंग अंदर आ जाती है ना, तो लोग अपने आप इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, फिर कुदरत उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि इंटेंट सही है। इंटेंट है कि यार ये भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं, जो कर सकते हैं कर देते हैं अपने दायरे में। हर राइट। इंसान के अपने दायरे होते हैं, उससे ज्यादा आप कभी कभी नहीं कर पाते। जब बहुत कुछ आ जाएगा तो दायरे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जितना अपने दायरे में कर देते हैं, खत्म हो गई बात। तो आप जब भिखारी को 100 रुपए देते हो या 50 रुपए देते हो या खाना देते हो या कुछ भी देते हो किसी भी जरूरतमंद को, तो आप उसके लिए इंस्पिरेशन हो। एब्सोल्युटली राइट। तो राइट। आपने जाने अनजाने में उसके लिए एक लेगेसी भी छोड़ दी। उसको भी लगता होगा यार, ये अच्छा इंसान है, ऐसा बनना है मुझे जिंदगी में। Absolutely. So you have been relating Srimad Bhagavad Gita, हम्म and there are a lot of examples for self-help, for management also. In management studies हम्म also we relate, and हम्म we take references from Srimad हम्म Bhagavad Gita. हम्म Any 5 lessons you want to share with our management students? 5 तो पता नहीं, जितने दिमाग में आएंगे, जो जो आता है मैं बता देता Okay. हूँ। Though you सबसे have पहले, already mentioned 3. हाँ, जो जैसे बातों में निकल जाता है, क्योंकि किसी भी चीज का मैं जिंदगी में कभी स्ट्रक्चर और फॉर्मेट नहीं बनाता। किसी भी बात का मुझे लगता है जो बात दिल से निकली है वो दिल से निकलनी चाहिए और दिल तक पहुंच जानी चाहिए, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। इट हैज टू, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल। सो लेट्स टेक लाइफ एज इट कम्स। सो एक तो जैसे मैंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छे से कहा गया है कि neither can you foresee future nor you can create future, you can only welcome future with patience and courage। मतलब ना आपको भविष्य का निर्माण करना है, ना आपको भविष्य को देखना है, आप सिर्फ भविष्य का आलिंगन कर सकते हैं, मतलब स्वागत कर सकते हैं धैर्य और साहस के साथ। और ये दो क्वालिटी जिंदगी में बड़ी काम आती हैं, धैर्य और साहस। हैव Right. पेशेंस, आएगा जिंदगी में, होगा। और करेज रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए हम फेस कर सकते हैं, इतना विश्वास खुद पे और ऊपर वाले पे रखें। दूसरा, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि अक्सर हर इंसान में कमियां खामियां होती हैं, लेकिन हम उन खामियों को, हम उन कमियों को अपनी मर्यादा बांध लेते हैं, हम उसको लिमिट कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो इंसान उस लिमिट से बाहर निकल के छलांग मारता है, उस मर्यादा से बाहर निकल के छलांग मारता है, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाता है, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी अपनी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको अपनी मर्यादा नहीं बनाया। उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उस कमी, उस खामी को छलांग लगा के आगे पार किया। बहुत सारे लोग जिंदगी में यही करते हैं, क्योंकि उनके भी बचपन में बहुत सारे उनको नेगेटिव बिलीफ्स दिए गए थे, बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा नहीं। उन्होंने अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से उसको क्लेंस किया, जिंदगी में आगे बढ़े नई सोच के साथ उभरते हुए।
राइट। एक बड़ा अच्छा मैंने श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा था कि खुद पर इतना विश्वास रखें और ऊपर वाले पे इतना विश्वास रखें कि जब भी जिंदगी में कोई दिक्कत आएगी, जब भी जिंदगी में कोई संकट आएगा, तो उसको झेलने की शक्ति ऊपर वाला आपको उस समय दे देगा, इस बात पर विश्वास रखें। संकट तो आएंगे, जब संकट आएगा तो शक्ति भी ऊपर वाला ही देगा, लेकिन विश्वास रखना जरूरी है। हम क्या करते हैं, संकट आने से पहले 10 बार इसके बारे में सोचते रहते हैं, एंक्शियसनेस, कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। आप एक प्रॉब्लम को 2 बारी नहीं सॉल्व कर सकते, एक बारी अपने दिमाग में और एक बारी जब वो आएगी। अक्सर हम यही गलती करते हैं, क्योंकि हमें राइट। खुद पे विश्वास नहीं है, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है। उस पर विश्वास रखें कि जब भी कोई संकट आएगा, आपने देखा होगा बालाकृष्ण, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे लोग बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन इतना मुश्किल संकट में इतनी कहीं से उनके अंदर ताकत आ जाती है कि सब बाईपास कर जाते हैं। जैसे एक लड़की है ना, वो क्या नाम है उनका, ज्योति, जिन्होंने साइकिल पे 1200 किलोमीटर चल के गए, अपने फादर को लेके गई अभी। ये जी। संकट है, लेकिन शक्ति ऊपर वाला ने दे दी ना। 1200 किलोमीटर साइकिल पे अपने डैड को लेके जाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ा ना। एब्सोल्युटली। तो मतलब कहीं ना कहीं इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जब संकट आएगा तो शक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। राइट। विश्वास रखो खुद पे, ऊपर वाले पे समर्पण करो, थोड़ा सा सरेंडर करो अपनी जिंदगी को। हाँ, तो मैं कह रहा था, जब भी संकट आएगा तो ऊपर वाला आपको शक्ति दे देता है, उस पर विश्वास रखें, बिना उसके कुछ नहीं होगा। विश्वास रखना बड़ा जरूरी है। अपने आप शक्ति आएगी, अपने आप कुछ होगा अंदर से, अपने आप खून खोलेगा, बौखलाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप उसको हैंडल कर पाएंगे। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द सुप्रीम पावर। एक मैंने बड़ा अच्छा समझा श्रीमद् भागवत गीता से। तो श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पे बहुत महत्व दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये तो सबको पता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मतलब ये है कि कर्म आप जो कर रहे हैं करते चले जाएं, सोचें कम करें ज्यादा। जितना सोचेंगे सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। कर्म जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। कर्म से फल मिलता है, सोचने से फल नहीं मिलता। आजकल सबके सब सोचते बहुत है, करते बहुत कम है। सोच में ही फंस जाते हैं, आइडियाज आते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूशन बड़ा जरूरी है। इंप्लीमेंट करोगे, चाहे गलत है चाहे सही है, सीखने को मिलेगा। तो कर्म करो, और उसका जो फल है, चाहे वो सक्सेस है चाहे वो फेलियर है, उसको ऊपर वाले को सरेंडर कर दो। इसे कहते हैं भक्ति योग। मतलब कि जो भी फल आएगा उसका, चाहे वो सक्सेस है चाहे वो फेलियर है, ना मैं सक्सेस से अटैच हूंगा ना फेलियर से अटैच हूंगा, क्योंकि मुझे कर्म करने में मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, प्रोसेस ऑफ वर्किंग। तो कर्म योग, भक्ति योग मतलब सरेंडर द रिजल्ट्स। ज्ञान योग कि चाहे वो सक्सेस है चाहे वो फेलियर है, उनसे दोनों में से कुछ सीख लो, जिसे विजडम कहते हैं। राइट। चाहे वो सक्सेस हुआ चाहे वो फेलियर हुआ, सीख लो ना। सीखना बड़ा आसान है, सीखते ही यू ग्रो आउट ऑफ इट। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का सही संतुलन। और एक बड़ा कमाल का है, पांचवा, या फिर आ गया दिमाग में तो बता देता हूँ। कभी भी किसी इंसान को किसी भी रिश्ते में ना, जब भी हम किसी के साथ, ये सब स्टूडेंट्स के लिए भी है, बड़ा जरूरी है, ये मैंने देखा है, समझा, महसूस किया जिंदगी में। जब भी किसी से रिश्ता बनता है, रिलेशनशिप बनता है, संबंध बनता है, तो हमारी आदत है हम उसको सीमाओं में बांध लेते हैं। हम उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वी स्टार्ट केजिंग द पर्सन, वी स्टार्ट टेलिंग द पर्सन, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते, आप ये कॉल नहीं कर सकते, आप ये टेक्स्ट नहीं कर सकते। अरे लाइव ह्यूमन बीइंग है, आप उसे सीमाओं में नहीं बांध सकते। एब्सोल्युटली। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। आपको अगर एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो आपको भी बुरा लगेगा ना। तो आपको कोई हक नहीं है किसी भी लाइव ह्यूमन बीइंग को कैद करने का, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल फॉर्म हो चाहे साइकोलॉजिकल फॉर्म हो। तो किसी को कैद ना करें। कैद में प्यार नहीं है, प्यार इज लिबरेशन। फ्रीडम होता है प्यार की, भाई तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ता हूँ, मुझे तुझ पर संपूर्ण विश्वास है। हाँ ठीक है, अगर आप धोखा देते हो तो आपको पता है दरवाजा खुला है, आप जा सकते हो, दोबारा एंट्री नहीं है जिंदगी में फिर, क्योंकि आपने किया, आपने समझा नहीं उसकी महत्वता या उसकी लॉयल्टी को कह लो या कुछ भी कह लो। लेकिन आप बार बार कैद करते रहोगे, बार बार शक करते रहोगे, उसको सीमाओं की बाउंड्रीज में बांधोगे या किसी भी सीमा में बांधोगे, तो इंसान चोट महसूस करता है। अक्सर लोग पॉसेसिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस के नाम पर ना लोगों को सीमाओं में बांध लेते हैं, केज करने की कोशिश करते हैं। डोंट केज अ ह्यूमन बीइंग, यू कांट डू इट, नोबडी हैज एवर बीन एबल टू डू इट। ये एग्जैक्टली स्लेवरी हो जाता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने कितना, हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया फ्रीडम लेने के लिए। अब फ्रीडम है,
चाहे वो फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, वो तो जरूरी है ही ना हर इंसान के लिए। तो कोशिश करें सीमाओं में ना बांधें किसी भी इंसान को, ये सही नहीं है। दिस विल ओनली हैम्पर द रिलेशनशिप। ऐसे रिश्ते आगे नहीं बढ़ते जिंदगी में। राइट, विश्वास बड़ा जरूरी है रिश्ते में, रिस्पेक्ट बड़ी जरूरी है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज बिगर देन लव। एब्सोल्युटली, दीज आर द बेसिस एंड द फाउंडेशन ऑफ जिसे आप प्यार कहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक और सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मैं पूछने की गुस्ताखी जरूर करूंगा। पूछ लो। वो ये कि whenever we see you on screen, टीवी पे हो, नच बलिए में हो या फिर खतरों के खिलाड़ी में हो, there is a glitter in your eyes. Really? So that is a glitter of determination, happiness, self-love. What is the secret? ग्लिटर इसलिए है क्योंकि जिंदगी में खुश रहना पसंद है, जिंदगी को सिंप्लीफाई करना पसंद है। गोल तो नहीं कहूँगा, पर्पस बहुत बड़ा है जिंदगी के अंदर, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ जो पर्पस ऊपर वाले ने दिया है उसको संपूर्ण करना है, उसको परिपूर्ण करना है, उसको फिनिश करना है। जब तक सांस है तब तक मेहनत करनी है। और मुझे लगता है सबका हाथ पकड़ के आगे चलते जाना है जिंदगी में, बस यही, इसी वजह से शायद वो रेडिएशन है या ग्लिटर है या कुछ भी कह लो बहुत। और मुझे लगता है ये आंखें अगर दी गई हैं तो अच्छा देखें, ये बड़ा जरूरी है हर इंसान के अंदर। इसलिए कहता हूँ खूबियां देखो, कमियां नहीं। तो मुझे हमेशा से होता है हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, मेरे में है, अपने गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए कि कमियां खुद के अंदर भी हैं। लेकिन अगर आंखें तो देखो वो नहीं कर सकती ना डिस्टिंग्विश, वो तो अच्छा भी देखेंगे बुरा भी देखेंगे, लेकिन माइंड तो उसको एसिमुलेट कर सकता ना सही तरीके से। इसलिए कोशिश करते हैं अगर आंखें कुछ भी देख रही हैं तो माइंड करेक्ट एसिमुलेट करे, सही पर्सपेक्टिव से, सही इंस्ट्रूमेंट से, सही चश्मे से सही चीज देखे, तो फिर अपने आप आंखों में ग्लिटर आ जाएगा। Absolutely. मुझे गुलजार साहब की एक बात याद आ रही है। उन्होंने एक बार कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि शायर बनने के लिए दुखी होना जरूरी है क्या? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खुशी जो होती है वो फुलझड़ी की तरह होती है, और जो गम होता है वो देर तक महकता है। वो अगरबत्ती की तरह होता है और देर तक महकता है। सो वक्त कैसे बीत गया, हमारा इंटरैक्शन जो है, मैं वक्त देख रहा हूँ 1 घंटा 9 मिनट हो गए हैं, वो कैसे बीत गया बिल्कुल फुलझड़ी की तरह। Absolutely, so wonderful. गुलजार साहब की आपने बात की है, मेरे फेवरेट हैं, और बहुत ही आई थिंक जिंदगी के सार को 2 लाइनों में जो लिख सकता है वो वही इंसान है। बड़े प्यार से उनकी 2 लाइनें मुझे याद हैं कि नेकियां करके दरिया में डाल दोगे जो अभी, नेकियां करके दरिया में डाल दोगे जो अभी, वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देंगी कभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुझे याद आ रहे हैं अब राहत इंदौरी साहब इस बात से कि न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। वाह, यस, ब्यूटीफुल। सो any final words you want to say to our students? I just want to say that try and simplify your life. Simplify करो चीज़ों को। देखो बड़ा ज़रूरी है, जितना आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे उतना सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें। बेकार की बहुत सारी चीज़ों में उलझो मत, उलझते चले जा रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि अगर नहीं समझ पा रहे हो, अटक गए हो, तो गुरु का साथ लो। वो गुरु कोई भी हो सकता है, जैसे वो चींटी की बात की थी। तो थोड़ा सा समझना बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा जिंदगी को थोड़ा सा जल्दबाजी मत मचाओ। हमने रेस वाली बात की, जल्दबाजी तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं, क्योंकि जिंदगी को रेस नहीं है। लाइफ इज एन इनफाइनाइट गेम, जस्ट प्ले द गेम। डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक लाइफ सिंसियरली। राइट, हंसते खेलते, काम करते, मेहनत करते, एंजॉय करते जिंदगी बिताओ। जिंदगी जीने के लिए ऊपर वाले ने इतने, देखो ऊपर वाले ने पैदा इसलिए नहीं किया था कि डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है या क्रिकेटर बनना है। वो तो आप लोगों ने बना लिया, कुदरत ने यहाँ पे बना लिया, मैनमेड बन गई चीजें। फिर ट्रॉफीज आ गई, अवार्ड्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया। ये सब भ्रम है बेकार का। कुदरत ने बताया कि भाई आपको इतने सालों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, आप एंजॉय करो, खुश रहो, आसपास के लोगों के साथ भी खुश रहो, उनको भी खुशी दो, एंजॉय करो, जीते हो, जियो जिंदगी यार। काटो मत, काट रहे हैं जिंदगी, जियो जिंदगी, मजे करो। लाइफ छोटी है, और अपना कर्म बड़ा जरूरी है। कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ग्रो, बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। लाइफ हैज द
innate capability to teach you every moment. So be the student of life, keep learning, keep sharing, keep growing. Great. So thank you so much, Mr. Malhotra, for this wonderful session. I have been looking at the chat box. There are n number of questions. So is that okay if we can mark you email with these questions on Share and Grow? You can do that, yes. Absolutely. The email ID is contact@shareandgrow.in. We will share that with the students, so no problem with So that. you can share it. So whoever wants to, whatever we can do, we will do it. If somebody wants to join the sessions of the course, they can also do on the same as well. We just need to, or maybe जो questions हैं वो भी अगर कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ share करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ textual reply मिल जाए किसी भी चीज का, तो जो हम कर सकते हैं वो तो करेंगे. Definitely. So on behalf of IIBM family, we wish you a great success in all your future endeavors. आने वाली फिल्म के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you. And I must say your initiative Share and Grow is adding a lot of value to a lot of people. Thank you. That is very With the good. hope of meeting you again in the campus once this COVID thing is gone. Yes, absolutely. That would be wonderful. And I just want to conclude with saying long live IIBM and Jai Hind. Absolutely. Jai Hind. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.